آنے سے پہلے گرفتار کیا جاتا ہے؟ اگر نہیں کیا جاتا تو پھر تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ آج ہر شہری اس پر سوال اٹھا رہا ہے اور حکومت وقت سے جواب طلب کر رہا ہے۔ میری گزارش ہے لاہور کے شہریوں سے، لاہور سیاسی شعور رکھتا ہے۔ لاہور نے ہر اصولی موقف پر لاہوریوں نے کبھی خاموشی اختیار نہیں کی۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب صحیح کاز لاہوری نے دل سے محسوس کیا، اس کے ذہن نے تسلیم کیا، اس نے رکاوٹوں کو عبور کیا۔ وہ رکاوٹوں کے باوجود اپنی منزل تک پہنچا۔ آج میں مخاطب ہوں، میں التماس کر رہا ہوں لاہور کے شہریوں سے، کیونکہ باہر سے لوگ انہوں نے نہیں آنے دینا۔ بالکل ان کا فیصلہ ہے، کسی کو نہیں آنے دینا۔ ٹرانسپورٹرز کو ضلعی انتظامیہ نے دھمکیاں دی ہیں کہ اگر آپ کی کوئی ٹرانسپورٹ ہم نے دیکھی، آپ کسی مسافر کو لاہور لے کر گئے تو آپ کی گاڑیاں بھی ضبط ہو جائیں گی، آپ کے لائسنس جو ہیں وہ بھی منسوخ کر دیے جائیں گے۔ ان پر خوف طاری ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ گاڑیاں دستیاب نہیں ہیں، اگر ہوں بھی صحیح تو ان کو اجازت نہیں ہے۔ اگر پرائیویٹ گاڑیوں پہ کوئی آنا چاہے اور تحریک انصاف کا جھنڈا ہو، اس کو لاہور کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے خائف ہو چکے ہیں یہ تحریک انصاف سے۔ تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے میں اپیل کر رہا ہوں لاہور کے غیور اور باشعور شہریوں سے، نوجوانوں سے، خواتین سے، بزرگوں سے کہ آزمائش ہے۔ آج لاہور کی آزمائش ہے اور مجھے یقین ہے کہ لاہور مایوس نہیں کرے گا۔ رکاوٹوں کے باوجود وہ لوگ آئیں گے۔ میری گزارش ہے، آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ ہم نے کہیں نقص امن پیدا نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے پاس اجازت ہے، ہائی کورٹ کی اجازت ہے۔ ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنے جا رہے۔ ہم ایک جلسہ کر رہے ہیں، پرامن جلسہ کر رہے ہیں۔ وہ ہمارا آئینی بنیادی حق ہے اور کورٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کے راستے میں کوئی آتا ہے تو بڑی تمیز سے آپ نے راستہ کھلوانا ہے، لڑنا نہیں ہے۔ وہ چاہیں گے آپ کو الجھائیں، وہ چاہیں گے وہ آپ کو پرووک کریں۔ آپ نے پرووک نہیں ہونا، آپ نے الجھنا نہیں ہے۔ آپ نے کوئی جسے کہتے ہیں نا، کوئی لاٹھی پتھر کوئی نہیں، کچھ نہیں، کوئی ہاتھ میں ڈنڈا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیں، اپنے جذبے سے لیس ہو کر آئیں۔ اور یہ جو جذبہ ہے نا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، وہ سب کو ڈھیر کر سکتا ہے۔ اس جذبے سے لیس ہو کر آئیں، مینار پاکستان پہنچے۔ یہ مینار پاکستان وہ جگہ ہے جہاں ہندوستان کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کی بنیاد پر آپ کو آزادی ملی۔ مملکت خداداد پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آئی، آپ آزاد ہوئے۔ آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ آزاد ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو یہ حقیقی آزادی کی تحریک کا آغاز ہونے چلا ہے۔ 23 مارچ 1940 آپ کے بزرگوں نے تحریک پاکستان کی تہ اور بنیاد رکھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں۔ اور آج پاکستانیوں نے جو پنڈال میں ہوں گے یا جو پنڈال میں نہیں ہوں گے، باوجود رکاوٹوں کی وجہ سے اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہوں گے یا لائیو سٹریمنگ پر سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے،
आपने अपने घरों में बैठकर अज़्म करना है और फैसला करना है कि आज हम हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हो रहे हैं और पाकिस्तान को उस ज़हनी ग़ुलामी और उन जंजीरों से जो हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट बनी है, हमने पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है। हमने पाकिस्तान के आइन का दिफा करना है। हमने पाकिस्तान की अदलिया के साथ शाना बशाना खड़ा होना है। अगर उन्होंने आइन के दिफा का अज़्म किया, हमने अपने वकला की आवाज़ बननी है और उन बार्स का हमने हौसला बांधना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार और तकरीबन 90 बार एसोसिएशंस ने अपनी करारदादों के जरिए जो पैगाम दिया है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे वकला ने एक पाकिस्तान की जितनी तहरीकें चली उनमें कलीदी किरदार अदा किया और आज फिर वो मैदान में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक अज़्म का इरादा किए हुए हैं और तहरीक इंसाफ का हर कारकुन अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के साथ यकजहती करेगा, अपनी जुडिशरी और आइन का दिफा करने के लिए अज़्म करेगा। इमरान खान की आज का जो पैगाम है बहुत अहम होगा, काबिल ज़िक्र होगा, काबिल फ़िक्र होगा और पाकिस्तान की कौम को एक नई दावत देगा। तो मैं अभी खान साहब से मिल के बाहर आया हूँ और वो अपनी तकरीर की तैयारी में इस वक्त मसरूफ़ हैं, ज़हनी तौर पर तैयारी कर रहे हैं। जो पैगाम उनने आज कौम को देना है उसको आखिरी शक्ल दे रहे हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये पैगाम, उनका पैगाम मैं बज़रिया मीडिया के आवाम तक पहुँचाऊँ। तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इंशाअल्लाह माजी की तरह लाहौर निकलेगा, रुकावटें अबूर करेगा और अगर रास्ते में गाड़ी नहीं आने देंगे तो पैदल आइएगा। हो सकता सवारी ना जाने दें, आपकी गाड़ी ना जाने दें, मोटरसाइकिल ना जाने दें, जहाँ जगह मिले खड़ी कर दें, पार्क कर दें और वहाँ से पैदल निकले और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए अपनी मंजिल की तरफ मीनार पाकिस्तान पहुंचे। शुक्रिया। अच्छा शाहद, ये बताइएगा कि रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, रुकावटें खड़ी की गई हैं, रास्ते बंद हैं। किस तरह आपके जो कारकुन दूर दराज इलाकों से चले हैं वो कैसे पहुंचेंगे मीनार पाकिस्तान? दूसरा, जिला इंतजामिया के साथ बैठ के आपकी मीटिंग हुई थी, बाकायदा परमिशन मिली है, क्या रास्ते बंद करने का भी उसमें लिखा था? जिला इंतजामिया जो कहती है उसे फिर जाती है, बेबस दिखाई देती है, लाचार दिखाई देती है। अब इससे ज्यादा मैं और कोई लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन वो अपने कहे की खिलाफवर्जी कर रही है और वो हाई कोर्ट के फैसले की पाबंदी नहीं कर रही। वो रुकावटें डाल रहे हैं, लेकिन उन रुकावटों के बावजूद मुझे यकीन है इंशाअल्लाह के लोग आएंगे। अच्छा सर, बताइएगा कि पंजाब पुलिस कह रही है कि कुछ रेड अलर्ट्स की वजह से कुछ मुकामात बंद किए हैं, बाकी तमाम खुले हैं, कहीं पे भी पंजाब पुलिस के जो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी पे गुस्ताखी हो जाएगी, दिलदारी नहीं करना चाहता, झूठ बोलते हैं। थ्रेट अलर्ट हो सकता हो, मैं उनको क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं किसी की नीयत पर शुबा नहीं करूंगा, लेकिन जब जलसे की आपने इजाजत दी है तो फिर लोगों के रास्ते में रुकावट आएगी। या तो इजाजत ना होती, जब इजाजत है तो फिर कंटेनर क्यों है? जब इजाजत है तो घबराहट क्यों है? फैसला कर लेना। ये तो इजाजत ना हो, इजाजतनामा मनसूख कर देते, अदालत में जाते जरा करते और अदालत को कन्विंस करते कि थ्रेट अलर्ट है, इजाजत न दी जाए। जब आपने सब कुछ कहने के बावजूद अदालत ने इजाजत दे दी तो फिर इन कंटेनर्स का कोई जवाब नहीं है। मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा, पुलिस से बिलखुसूस इन कंटेनर्स को हटा दिया जाए। हम रिट भी कर रहे हैं, हम पिटीशन भी डाल रहे हैं कोर्ट पे कि ये जो कंटेनर्स लगाए गए हैं नाजायज हैं,
इन कंटेनर्स को फिल फॉर हटा दिया जाए, कहीं ये कंटेनर जो है नुक्स अमल का जरिया ना बन जाए और आप बिला वजह जो हम पुरअमन रहना चाहते हैं आप उससे लोगों को मुश्तइल कर दें। अगर कुरैशी साहब ये भी बताएं, हुकूमत जो है वो मस्जिद है कि वो इलेक्शन नहीं करवा रही, अगर हुकूमत नहीं करवाती तो आपका लाहेअमल क्या होगा, किस तरह हुकूमत को कायल करेंगे, क्या आप बैठेंगे उनके साथ में? और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान है वो लाहौर जैसा करेंगे या पूरे पाकिस्तान में उनका शेड्यूल है? देखिए, ये जो जलसा है ये उन्होंने कल भी फरमाया कि इस साल के उनके जलसों का पहला जलसा आगाज़ है, ये इब्तदा है। इसका मतलब ये है कि वो दीगर शहरों में भी जाएंगे और आवाम से मुखातिब होंगे। एक नंबर 2, आपने फरमाया कि जो आपका सवाल था कि दूसरा हिस्सा क्या था आपका? इंतखाबात में डिले, इंतखाबात में जो ताखीर है, हमने कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। हमने रिट सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटिशन जो है वो डाल दी है और हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हमारी गुजारिश होगी हालात की नज़ाकत को देखते हुए मेरी चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश होगी कि फिल फॉर वो उसको कॉज लिस्ट पर लाएं और हमारी जो दरख्वास्त है उसको सुनें। शाह साहब बताइएगा, क्या तरीके साहब की तरफ से दावा किया जाता कि तरीका सबसे बड़ा पावर शो किया जाएगा, तो इतनी रुकावटों के बाद जो वो आपका ये दावा पूरा हो सकेगा? देखिए, उन्होंने हमें कामयाब कर दिया। किस तरह? अगर पावर शो इनकी जो स्पेशल ब्रांच है, जो इनके इंटेलिजेंस का अपरेटस है, अगर इनको इतलात होती कि जलसा नाकाम होने वाला है तो कंटेनर खड़े करने की जरूरत ही नहीं थी। ये रुकावटें इस बात की दलील हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ अपने पावर शो में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही थी। ये इनके हाथ पांव फूले हैं, उसकी वजह से ये रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। जी भैया, साहब मुझे ये बताएं, आपके कारकुनों को हरासा किया जा रहा है, थ्रेट दिया जा रहा है, प्रेसिडेंट वैन में भर के लेके जा रहे हैं, इनको कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, किस आइन के तहत, किस कानून के तहत? और अगर आपको जलसे की इजाजत भी दी गई है तो उसके बावजूद ये गिरफ्तारियां और ये रातों में कानून शिकनी है भैया, कानून शिकनी है, इजाजत है और कानून शिकनी कर रहे हैं। हमारे कारकुनान को जो गिरफ्तार कर रहे हैं उनको 16 एमपीओ के तहत मेरी इत्तला है वो इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है। अब घर में कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तरावी की नमाज पढ़ रहा है, कोई रोज़ा खोल रहा है, उनको छापा मार के गिरफ्तार कर दिया। क्या कानून शिकनी की है? बैठे अपने घर में है, अपने बच्चों के साथ रोज़ा खोल रहे हैं और आपने गिरफ्तार भी कर लिया, छापे भी उनके घर पे मारे, दहलीज भी उनकी पामाल की। ठीक, चादर चार दीवारी का एहतराम आप भी बजा ना लाए और गिरफ्तार भी इनको किया जा रहा है। ये हरासा करने की कोशिश है, ये खौफ व हरास फैलाने की कोशिश है, लेकिन इंशाअल्लाह कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। अभी आजम स्वाति साहब ने वीडियो पैगाम में कहा है कि हमने सीसीपी से बात की है, सीसीपी कह रहा है तमाम रास्ते अभी थोड़ी देर में खोल दिए जाएंगे। ये जो कहते हैं काश वो कर भी दे, कहते कुछ है करते कुछ है। शाह साहब, इमरान खान साहब को खतरा किस चीज से है? कौन है जो इनकी जान के खिलाफ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਤਰੇ ਦਾ, नाम बता दें। ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। मेरा ख्याल है आप किसी अपने और साथी से पूछ ले, आपको बता देगा। आप लगता बेखबर है, बाकी सब बाखबर है। आज अगर दोबारा से उसी तरह के क्लैशेस देखने में आते हैं जैसे पहले होते सवाल रहे, करते जैसे हैं। पहले जमान पार्क के बाहर भी पता clashes नहीं हुए, खतरा क्या पहली बात जवाब, हमने क्लैश करना नहीं है, हमने लड़ाई करनी नहीं है, हमने हत्थे हैं, हमारे पास ना डंडा है, ना लाठी है, ना पत्थर है। हम पुरअमन अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माओं के साथ जाएंगे, लड़ने जाएंगे। बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ कोई नहीं जाता, हम फैमिलीज जाएंगे। इसका मतलब है हमारा लड़ने का इरादा ही नहीं है, तो क्यों कोई लड़ेगा हमसे? शरारत वो करेंगे, हम फिर भी सब्र करेंगे। अच्छा, जो आपने पिटीशन दायर की है इलेक्शन की ताखीर में, इसमें क्या कुछ लोग नहल भी हो सकते हैं? चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और इलेक्शन कमीशन के ताबे है तमाम अदारे, तो क्या उन्होंने, मिसाल आपके सामने है, यूसुफ रजा गिलानी ने अदालत की हुक्म अजूली की थी, उनको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा सुनाई गई और उनकी वजारत उज़्मा गई। शहबाज शरीफ वही कुछ कर रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं
और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वो वायलेट करते हैं, रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो इनका अंजाम भी वो हो सकता है अगर लाडले न हुए तो। थैंक यू।